Jain class 10th. Today in lecture 10th we will continue the chapter triangle and start the solving of exercise 6.5. So in exercise 6.5 we will continue with the first question. See the first question, or the question is asking that sides of triangles are given below, है ना. आपको यहाँ पे 4 पार्ट्स दिए गए हैं जिसमें की साइड्स मेंशन है ना. डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट ट्रायंगल, है ना. आपको पता करना है कि कौन सा राइट ट्रायंगल होगा. ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पार्ट है इसका 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर. These all are 3 sides, measurement of 3 sides. You have to check whether this 3 sides will form right angle triangle or not. So we know that in case of right angle triangle, sum of square of 2 sides must be equal to square of third side, है ना. And the third side is the largest side. Largest side is of 25 centimeter. सबसे बड़ा साइड कौन सा है? ये है. ठीक है. Suppose this is A equal to 7 centimeter, B equal to 24 centimeter and C is equal to 25 centimeter. तो तीनों में सबसे बड़ा साइड कौन सा है? This one, 25 centimeter. It means that C square must be equal to A square plus B square. In case of right angle triangle. In case of right angle triangle, C square highest side जो होता है C square is equal to A square plus B square. Let me check. In case of A square will be 7 square plus 24 square and it must be equal to 25 square. So 7 square is equal to 49 and 24 का square कर देते हैं. It will become 4 4 16 carry 1. 4 to जाएगा 61 17 carry 1 the 4 1 5 26 and when we add these two 9 or 6 50 carry 1 7 4 11 1 12 carry 1 6 25 and here 25 square 625. It means that LHS equal to RHS. It means that this is satisfying the Pythagoras theorem. Pythagoras theorem के अकॉर्डिंग क्या होता है कि किसी भी एक साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है. दैट वी नो इन केस ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. सो दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम. C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. जो लार्जेस्ट साइड होगा अमंग ऑल 3, इन तीनों में लार्जेस्ट साइड कौन सा है? 25 सेंटीमीटर. तो 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर जो होगा वो बाकी दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए. तो देखिए आ जा रहा है. इट मींस दैट 7 सेंटीमीटर, 24 centimeter and 25 centimeter will form right angle triangle. ठीक है, right angle triangle फॉर्म करेंगे. सेकेंड क्वेश्चन में भी होमवर्क हम लोग थर्ड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन फर्स्ट का ही थर्ड पार्ट में सॉल्व करते हैं. देखिए थर्ड पार्ट में फिर से वही बात 50 80 100 50 centimeter, 80 centimeter and 100 centimeter. Okay, you have given 3 sides 50 centimeter, 80 centimeter and 100 centimeter. You have to check whether these 3 sides will form the right angle triangle or not. आपको चेक करना है कि क्या ये right angle triangle form करेंगे या नहीं. See, तो highest side कौन सा है? This 100, right? Suppose A is 50 centimeter, B is 80 centimeter, 80, and C is 100 centimeter. So largest side is 100. It means that C square equal to A square plus B square. C square is equal to A square plus B square. C की वैल्यू 100, तो 100 square must be equal to 50 square plus 80 square. 50 square means 2500, 6400. When we add these two, we'll get 8900. है ना. 5 4 9 6 2 800.
तो ये 64 और 25 ओके। तो 8900 यहाँ पे 100 का स्क्वायर करते हैं तो ये जाएगा 10,000 विच इज नॉट इक्वल, है ना, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो रहे हैं, ठीक है, ये आपस में इक्वल नहीं हो रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए थी, बट द गिवन कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइंग, है ना। ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो वैल्यू आ रही है वो क्या जा रही है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 8900, जबकि c स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 10,000, है ना। तो ये दोनों आपस में वेरीफाई नहीं हो पा रहा है। Consider a square plus b square is not equal to c square, so 50 centimeter, 80 centimeter and 100 centimeter will not form right angle triangle. ये right angle triangle form नहीं करेगी, okay? So in this way you can always check whether the three sides determined will form a right angle or not, okay? Now come to the next question, that is third one. Third question पे चलते हैं. This was the first question. First question की 4 parts हैं, first, second, third, fourth, correct? So I have given here 2 parts. Now the 2 parts will be solved by you at your home, okay? फर्स्ट थर्ड मैंने सॉल्व कर दिया, सेकंड फोर आप लोग सॉल्व करोगे घर पे, ओके। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन. इन द थर्ड क्वेश्चन, इन अ ट्रायंगल 6.53, यहां पर एक ट्रायंगल दिया गया है, फिगर दिया गया है. दिस इज ट्रायंगल BAD. In a triangle given ABD is a triangle right angle at A पर right angle है. Then AC is perpendicular BD. A से यहाँ पर एक C ड्रॉप किया जा रहा है, AC perpendicular on BD. So that given क्या हो गया? Given is angle BAD equal to 90 degree, BAD 90 degree, and AC is perpendicular on BD. AC जो है वो BD पे क्या है? Perpendicular है. These two things are given. What you have to prove? To prove, we need to prove that first AB square equal to BC into BD. First part, AB square BC into BD, इसको भी रेज कर दे रहे हैं. Note down all these things. क्लास ऑफ कॉपी है ना, क्लास ऑफ कॉपी में सारा कुछ मेंटेन करते चलिए. While you are maintaining notes, and at the same time, all questions should be solved of an NCERT address, है ना. NCERT के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने ही हैं, है ना. Half questions are done by me in class work, and rest half will be solved by you at your home. That's why I'm saying maintain 2 separate copies for class work and homework. And most of the time in examinations, the directly question asked from NCERTs, है ना. NCERT से सीधे क्वेश्चन उठा के पिक किया जाता है. That's why you will have to practice more and more question from NCERT itself, है ना. कोई क्वेश्चन NCERT का छूटना नहीं चाहिए, ठीक है. उसके अलावा फिर लोग प्रैक्टिस करेंगे RS अग्रवाल, RD शर्मा भी, ठीक है. देखिए, we're discussing about to prove AB square is equal to BC into BD. First part is the second part of proof. You have to prove AC square equal to BC into BC, and in third part, AB square is equal to BD into CD. तो these 3 conditions you have to prove. यहाँ पे आपको ये तीनों चीजें प्रूव करनी है. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट थिंग, AB square equal to BC into BD. In second part, AC square BC into DC. In third part, AD square BD into CD.
यहाँ पर हम ध्यान से देखें, पहला पार्ट जो है एक एक करके प्रूव करेंगे। ए बी स्क्वायर BC BC इंटू BD बड़ा ट्रायंगल है ना। तो देखिए यहाँ पे दो ट्रायंगल की बात करेंगे, ABC की है ना, ABC और ABD की। क्यों? क्योंकि यहाँ बोल दिया गया ना AB स्क्वायर BC BD और BD, तो ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल है ना। क्योंकि यहाँ पर एक चीज और भी देखने वाली बात है कि ABC है ना, देखिए AB एंड BC साइड को इंक्लूड किया गया, AB और BC, तो इससे मिलकर ABC ट्रायंगल बन गया है ना। और क्या है AB और BD, तो AB और BD तो ABD ट्रायंगल। तो इन द प्रूफ अब इंक्लूड इन ट्रायंगल ABC एंड अच्छा करेस्पॉन्डेंसी का भी ध्यान देंगे। देखिए ए पे ABC, C पे राइट एंगल बन रहा है। अगर हम छोटे ट्रायंगल की बात करें ABC की, तो C पे राइट एंगल बन रहा है, इसलिए अगर C पे राइट एंगल बन रहा है तो यहाँ बड़े ट्रायंगल में A पे राइट एंगल बन रहा है, तो C के करेस्पॉन्डिंग A होगा। ठीक है, अब दोनों में B कॉमन है, ABC और ABD में B कॉमन है, तो जहां पर B है B के करेस्पॉन्डिंग B आएगा, और A के करेस्पॉन्डिंग क्या बच रहा है, D बच रहा है, तो A के करेस्पॉन्डिंग D हो जाएगा। तो ABC जो है वो इसके करेस्पॉन्डिंग है, BA करेस्पॉन्डिंग है। ओके, करेस्पॉन्डेंसी का ध्यान दीजिएगा, A के करेस्पॉन्डिंग B के करेस्पॉन्डिंग B और C के करेस्पॉन्डिंग A, क्योंकि C पर भी 90 डिग्री बन रहा है छोटे ट्रायंगल में, बड़े ट्रायंगल में A पे 90 डिग्री बन रहा है। BD कॉमन है, इसलिए A के करेस्पॉन्डिंग B होगा, A के करेस्पॉन्डिंग बचा हुआ जो होगा वो D होगा। अब देखिए एंगल B जो है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल, ऐसे मत लिखिए, यहाँ पे दो ट्रायंगल्स की बात हो रही है तो ट्रायंगल्स के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, एंगल ABC ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल, ABC ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल इज इक्वल टू एंगल DBA। क्यों? क्योंकि कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल है, इसलिए ABC इक्वल टू DBA, दिस इज कॉमन। सेकेंड थिंग एंगल, देखिए सेकेंड थिंग ACB राइट एंगल है यहाँ पे, तो ACB इज इक्वल टू A की करस्पॉन्डिंग क्या है D, तो DAB। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री है, दोनों राइट एंगल है। ठीक है, तो दोनों क्या हो जाएंगे 90 डिग्री हो जाएंगे। नेक्स्ट थिंग, तो ये तो हो गया 90 डिग्री की बात। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग दैट अकॉर्डिंग टू एंगल है ना, टू एंगल्स आर इक्वल, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल कॉमन है, ये राइट एंगल ये राइट एंगल इक्वल हो गया, तो ट्रायंगल सिमिलर टू ABC जो है वो DBA के सिमिलर हो गया। ओके, अच्छा देखिए एक चीज और भी है, यू नो नीड टू राइट दिस ऑल थिंग, है ना, जरूरी नहीं है कि सारी चीजें लिखें, क्योंकि अभी हमने एक थ्योरम ही दिया था कि जब कोई साइड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। उसके अलावा ये ट्रायंगल जो होगा बड़े ट्रायंगल के सिमिलर होगा, ये छोटा ट्रायंगल भी बड़े ट्रायंगल के सिमिलर होगा। तो ऐसे भी आप क्या कर सकते हो ना, डायरेक्ट थ्योरम लिख के भी कर सकते हो, या आप डिस्कस प्रूफ करिए। ठीक है, तो अभी मैं प्रूफ इसलिए किया क्योंकि बाद रिवाइज करा दूं, है ना, अदरवाइज एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो यू कैन डायरेक्टली सॉल्व बाय यूजिंग द थ्योरम लिख के ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इसके आगे वाला जो होगा वो डायरेक्ट थ्योरम के थ्रू प्रूव करूंगा। तो ABC जो हो गया वो DBA के सिमिलर हो गया। अब ABC जब DBA के सिमिलर हो गया तो देखिए हम लिख सकते हैं AB ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल, है ना, देखिए AB की करेस्पॉन्डिंग कौन है, AB की करेस्पॉन्डिंग है DB, AB अपॉन DB इक्वल टू, अगर बात करें BC की, है, तो BC के करेस्पॉन्डिंग कौन है, BC की करेस्पॉन्डिंग BA या फिर AB, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो AB स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू BD। दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो आप लिख सकते हैं बाय
सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी कहती है कि if two triangles are similar then sides are proportional, है ना। करेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं। यहाँ पे करेस्पॉन्डिंग साइड कौन होंगे? AB के करेस्पॉन्डिंग DB, AB अपॉन DB इक्वल टू BC अपॉन BA, ठीक है। तो AB स्क्वायर हो गया DB इंटू BC। तो अगर आप करेस्पॉन्डेंसी सही अगर लिखे हुए हैं, है ना, AB करेस्पॉन्डिंग D, B करेस्पॉन्डिंग B, C करेस्पॉन्डिंग A, तो आपको ये लिखने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज यू कैन ऑलवेज सी द फिगर आल्सो, है ना। A B के करेस्पॉन्डिंग कौन हो जाएगा? ठीक है, AB के करेस्पॉन्डिंग कौन हो जाएगा? ये B कॉमन भी था और A के करेस्पॉन्डिंग आपका D है, तो AB करेस्पॉन्डिंग DB, तो AB अपॉन DB, ठीक है। अब अगर BC की बात करें, BC के करेस्पॉन्डिंग कौन हो जाएगा? B करेस्पॉन्डिंग B है, BA, तो B, ठीक है। सेकंड थिंग, ये तो पहला वाला प्रूव हो गया। अब देखिए दूसरे पार्ट में क्या कहा जा रहा है? AC यानी कि AC BC BC, तो AC BC तो छोटा ट्रायंगल है, AC BC है, उसके अलावा और DC भी आना चाहिए, DC यानी ये साइड, ठीक है। साइड से क्लियर होगा कि हमको किस किस ट्रायंगल में रहना है, ठीक है। AC BC, तो AC और BC यानी ये ट्रायंगल लेना है और AC स्क्वायर तो AC BC, फिर AC लेना है और BC लेना है, दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल। तो वी नो दैट ट्रायंगल ACB is similar to triangle, अभी कौन किसके करेस्पॉन्डिंग है ये भी ध्यान दीजिएगा। ACB के सिमिलर कौन होगा? देखिए C तो कॉमन है, यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, तो C की करेस्पॉन्डिंग C ही होगा, C की करेस्पॉन्डिंग C ही होगा। लेकिन A के करेस्पॉन्डिंग कौन है? इस A के करेस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल होगा? A के करेस्पॉन्डिंग होगा B, है ना, और इस A के करेस्पॉन्डिंग होगा D। इट मींस CAB ट्रायंगल A के करेस्पॉन्डिंग कौन है? D, ये करेस्पॉन्डिंग DCA, करेक्ट। करेस्पॉन्डेंसी का ध्यान दीजिए, यहाँ पर बात ये हो रही है कि ये दोनों एंगल आपस में क्या हो गया है? इक्वल हो गया। अगर ऐसे ना समझ में आए तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन लॉन्ग भले होगा लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए ABC DBA की सिमिलर हो गया, ये पूरे ट्रायंगल के सिमिलर हो गया। इट मींस B इक्वल टू B, छोटे वाले ट्रायंगल का जो B है वो बड़े ट्रायंगल के B के इक्वल होगा। दूसरी चीज, ये राइट एंगल है और ये भी राइट एंगल है, तो दोनों राइट एंगल आपस में इक्वल हो गए हैं। तीसरी चीज, ये एंगल जो है बड़े रेक्टेंगल का D एंगल जो है वो इसके इक्वल हो गया। इट मींस दैट BAC, you can write here, BAC equal to BAC is equal to किसके इक्वल हो जाएगा? BDA, BDA by similar triangle have equal angle। लिख लीजिए, similar triangle have equal angle। ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है ना, तो इनके एंगल भी इक्वल होंगे। एंगल A जो होगा वो एंगल D के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। एंगल B जो होगा वो B के इक्वल होगा और C जो है वो A के इक्वल हो जाएगा। तो सिमिलर ट्रायंगल जो होते हैं उनके एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी या फिर एंगल 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 सिमिलैरिटी, ठीक है। अब देखिए ये एंगल, ठीक है, ये एंगल इसके इक्वल हुआ, ठीक है। दूसरी चीज, यहां पे देखिए राइट एंगल बन रहा है, यहां पे राइट एंगल बन रहा है, मींस एंगल ACB इक्वल टू ACB, ये राइट एंगल बन रहा है। DCA इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। तो ट्रायंगल ACB इज सिमिलर टू ट्रायंगल DCA बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, है ना। तो ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में क्या हो गए? सिमिलर हो गए, ठीक है। अब सिमिलर हो गए तो देखिए सेकेंड केस में आसानी से प्रूव कर सकते हैं। We can easily prove the second part. This is the second part. देखिए AC इस ट्रायंगल की बात हो रही है। इस ट्रायंगल में AC अपॉन
इस ट्रायंगल का क्या होगा, देखिए इस ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग अगर हम आते हैं AC, तो AC अपॉन DC इक्वल टू AC अपॉन DC इज इक्वल टू सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा, BC। BC के करस्पॉन्डिंग कौन है, BC अपॉन AC, सॉरी BC अपॉन AC, AC इंटू AC, AC स्क्वायर BC इंटू DC, है ना। देखिए प्रूफ हो गया सेकेंड पार्ट। थोड़ा सा प्रूफ को भी लेकर हम ध्यान देते हैं। देखिए प्रूफ जब करना है AC स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू BD, तो पहले AC के देखिए करस्पॉन्डिंग कौन है, AC अपॉन, तो AC है ना, तो देखिए AC करस्पॉन्डिंग कौन है, DC, AC अपॉन DC। दूसरी बात कौन है कि अब हम AC अपॉन DC तो आ गया, अब देखिए BC करस्पॉन्डिंग कौन है, तो BC के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर BC अपॉन AC है ना, BC अपॉन AC, BC अपॉन AC क्रॉस मल्टीप्लाई किया और ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। थर्ड पार्ट देखिए AD स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू CD। अब इस ट्रायंगल को और ऊपर वाले ट्रायंगल को सिमिलर करना है, तुमको पता है कि सिमिलर होता ही है, तो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ABC जो है वो सिमिलर हो जाएगा करेस्पॉन्डिंग का ध्यान दीजिए। ये D कॉमन है तो D के करेस्पॉन्डिंग D ही होगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है ना C पे, और बड़े एंगल में A पे बन रहा है, तो C के करेस्पॉन्डिंग A हो जाएगा और A के करेस्पॉन्डिंग बचा हुआ ये A जो है, ठीक है, A के करेस्पॉन्डिंग बचा हुआ साइड कौन सी है, B है, तो BDA, करेक्ट। नाउ C क्या करना है यहाँ पर, AD स्क्वायर करना है, तो AD के करेस्पॉन्डिंग कौन है, AD अपॉन BD। उसके अलावा देखिए AD BD आ चुका है, क्या बच रहा है, CD करेस्पॉन्डिंग कौन है, CD के करेस्पॉन्डिंग AD क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं we will get AD स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू CD। अच्छा यहाँ पे लिख लीजिएगा कि बाय एंगल सिमिलैरिटी, ठीक है, एंगल सिमिलैरिटी से दोनों एंगल आपस में क्या है, सिमिलर हैं। अच्छा देखिए कौन कौन से एंगल आपस में इक्वल थे इस केस में, यू कैन सी हियर फर्स्ट ये एंगल मान लो ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, दो एंगल आपस में इक्वल हुए। दूसरी चीज ये कॉमन एंगल है D, छोटे वाले ट्रायंगल में भी है और बड़े वाले ट्रायंगल में भी है, तो एंगल एंड एंगल दोनों ये ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ओके। अगर आपको लिखना हो तो आप लिख भी सकते हो कि एंगल लीजिए डायरेक्टली एंगल सिमिलैरिटी इक्वल होंगे, ठीक है। नोट ऑफ दिस क्वेश्चन, इट वाज लिटिल बिट लेंथी, लेकिन अगर आप चाहो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना कि ADC सिमिलर टू BDA है ना, तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते थे स्टार्टिंग से ही, जो यहाँ पर मैंने लिख कर प्रूव करना स्टार्ट किया था, हम डायरेक्ट इसके साथ भी प्रूव कर सकते थे, ठीक है। कुछ नहीं करना होता, जस्ट लिखना होता दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू बिगर वन, बिकॉज वी नो दैट व्हेन वी ड्रॉ a perpendicular on the third side the triangle divided to similar triangle, बार ट्रायंगल होता है वो दो सिमिलर ट्रायंगल में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये हमको थ्योरम भी पता है, थ्योरम लिख कर मेंशन करके पूरा वो सारी चीजें लिख सकते थे, बट मैंने इसको फिर से रिकॉल करवाया, रिवाइंड करवाया कि किस तरीके से हम लोग इसको और सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने पूरा प्रूफ कर दिया। दिस वाज द थर्ड क्वेश्चन, नाउ वी विल मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, थर्ड के बाद फोर्थ क्वेश्चन जो रहेगा वो आप लोगों को खुद भी करना है, ठीक है। देखिए ट्रायंगल चैप्टर अभी तक का सबसे टफ चैप्टर कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे सिमिलैरिटी और कॉन्करेंसी की बात हो रही है, तो दैट्स व्हाई यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट एंड सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चंस। जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व होगा उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बनेगा, है ना। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है, कोई थ्योरम नहीं समझ आता है, कौन ने कैसे प्रूव कर दिया, यू मे पोस्ट इन द ग्रुप, ठीक है, ग्रुप में पोस्ट करिए, मैं उसका सॉल्यूशन उसके लिए फिर से एक वीडियो क्रिएट कर दूंगा।
Now move to the next question, that is fifth one. Fifth question is ABC isosceles triangle. A B C isosceles triangle, ठीक है. AC इक्वल टू BC, AC साइड इज इक्वल टू BC साइड. गिवन क्या क्या हो गया, दैट AB इक्वल टू AC. सेकेंड थिंग, इफ AB स्क्वायर, ये भी गिवन है कि AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर गिवन है. प्रूव दैट, to prove ABC राइट एंगल ट्रायंगल. ABC क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा. ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल. ठीक है. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ABC एक ट्रायंगल है जिसमें कि AB साइड जो है वो AC साइड के इक्वल है. क्योंकि आइसोस्केलेन ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होते हैं, तो AB इक्वल टू AC. ठीक है. अब प्रूव करना है, ये कंडीशन और की है कि AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर. ये तो प्रूव दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. ओके. नाउ सी, फॉर प्रूविंग दैट इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमें प्रूव करना है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है. हम स्टार्ट कैसे करेंगे, you can always start this question by taking that we have taken here question number 5. Now see that you given that AB side equal to AC and AB square equal to 2AC square, ये given है. okay, and you have to prove that this is a right angle triangle. so proof क्या लेंगे, proof in case of triangle ABC right angle. अगर ABC right angle triangle होता तो क्या होता, that the larger side है ना, AB चूंकि AC की इक्वल है, अभी मैंने लिखा है कि AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, ये भी गिवन है ना. तो we can always write that in case of right angle है ना, अगर right angle triangle होता तो ये कुछ ऐसा होता कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. सिक्स क्लास क्वेश्चन मैंने गलत लिख दिया था यहाँ पे. इन द क्वेश्चन वाज गिवन AC इक्वल टू BC है ना, AC साइड जो है वो BC साइड के इक्वल है. मैंने गलती से AC को AB के इक्वल कर दिया था. ओके. तो AC इज इक्वल टू BC, दिस इज गिवन, एंड AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर. हमें प्रूव करना है राइट एंगल ट्रायंगल है. अब देखिए, अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगा ABC तो हमें पता है इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम कैन अप्लाई, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो सकता है. और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो लार्जेस्ट साइड होती है, देखिए इन केस ऑफ AC BC तो बराबर है, ये तो बराबर है, लेकिन AB स्क्वायर, AB जो है वो इसके स्क्वायर का डबल है, इसके स्क्वायर का डबल है. इट मींस दैट जो AB स्क्वायर जो होगा, AB जो होगा वो लार्जेस्ट साइड होगी. क्योंकि देखिए AC का स्क्वायर करके डबल कर रहे हैं तो AB स्क्वायर आ रहा है. इट मींस दैट AB इज द लार्जेस्ट साइड. तो अगर ट्रायंगल ABC राइट एंगल है तो AB स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर है ना. राइट एंगल केस में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो सकता है बाय पाइथागोरस. मैंने कंसीडर कर लिया है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना. तो अगर है तो ये कंडीशन वेरीफाई होना चाहिए. ओके. चलिए चेक करते हैं क्या वेरीफाई हो रहा है. तो देखिए AB स्क्वायर की जो वैल्यू होती है उसकी जगह पर हम लिख सकते हैं, अच्छा AB स्क्वायर भी रहने दीजिए ना. आइए राइट साइड में आते हैं. राइट साइड में देखिए BC की वैल्यू AC की इक्वल है, तो जहां पर BC है हम वहां पे लिख सकते हैं एक RHS, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. देखिए BC की वैल्यू क्या हो सकती है, AC हो सकती है, और AC स्क्वायर 2AC स्क्वायर हो सकता है. ठीक है. और 2AC स्क्वायर की वैल्यू क्या है, AB स्क्वायर है. तो आ गया ना LHS.
इट मीन्स पाइथागोरस कंडीशन इज सेटिस्फाइंग, पाइथागोरस कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है उस ट्रायंगल के ऊपर, दैट्स व्हाई सो द ट्रायंगल इज राइट एंगल। अब बात ये है कि कहां पर ये राइट एंगल होगा, ये भी तो प्रॉब्लम है। तो देखिए राइट एंगल कहां पर होगा, जो लार्जेस्ट साइड होती है वो क्या होती है, लार्जेस्ट साइड इज द व्हाट, हाइपोटेन्यूज, है ना। और हाइपोटेन्यूज के ठीक अपोजिट जो एंगल होता है दैट इज ऑफ 90 डिग्री, इट मींस एंगल सी विल बी 90 डिग्री, है ना। एंगल राइट एंगल एट एंगल सी, है ना। एंगल सी पे ये राइट एंगल होगा बिकॉज सी पे 90 डिग्री बनेगा। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग 90 जो लार्जेस्ट साइड होता है दैट विल बी द व्हाट, हाइपोटेन्यूज, और उसके ठीक अपोजिट जो एंगल होगा वो राइट एंगल होगा। तो इट मींस दैट triangle is right angle at C. I hope you all understood this question. Now your task for today is you need to go for the question number first, second and fourth will be in homework. Then question number second will be in homework. क्वेश्चन नंबर 4 विल बी इन होमवर्क, ओके। तो नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज 6.5 कौन कौन से क्वेश्चन होमवर्क में चले गए, क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 4, है ना। ये इतना क्वेश्चन आपके होमवर्क पर रहेंगे, मैंने करा दिया है। टुमारो वी विल गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 7, 9, 11, ठीक है, 13, 15 ये हम लोग कल सॉल्व करेंगे, ओके। तो ट्राई टू सॉल्व द मैक्सिमम क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर दैट इज ट्रायंगल। इट इज डिफिकल्ट चैप्टर, राइट, एंड थ्योरम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ दिस चैप्टर, है ना। सारे थ्योरम को प्रैक्टिस करिए बार बार ताकि वो आपकी प्रैक्टिस में हो जाए। थैंक यू सो मच क्लास।